So you can see a boy which is standing at point B. It has a weight of 80 pounds, and this boy is pulling a cord as shown to you in the figure. You need to find out कि चलें पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ जाए. The 80-pound boy stands on the beam and pulls on the cord with a force large enough. So ये वर्ड जरा गौर से देखें. Large enough to just cause him to slip. So इससे आपको क्या मिलता है कि he is on the verge of slipping, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so if the coefficient of static friction between his shoes and the beam is given to you as 0.4, we need to determine the reactions at point A and point B of the beam. At point A, we have a roller support. It means कि हमारे पास क्या reaction आना चाहिए point A पे? Normal. AY आएगा. इसी तरह at point B we have a pin support. So what should be the type of reaction which we are going to get at point B? Dx and dy. Dx and dy. The beam is uniform and has a weight of 100 pounds. It means कि इसका weight इसके center of gravity या center of area पे act करना चाहिए. Neglect the size of the pulleys and the thickness of the beam. Okay, so first of all, let us try to model this boy. इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जो बॉय है इसके ऊपर आप केस 1, 2, 3 में से कौन सा केस लगाएंगे? He is on the verge of sliding. Yes. 1. Why case 1? Case number 2, sir. केस 2 आएगा ना. पेंडिंग मोशन वाला तो केस 2 और 3 है. केस 2 ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है. केस 3 जो है वो सम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है. इसमें तो कांटेक्ट पॉइंट ही एक है. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई केस नंबर 2 in which this boy is on the verge of sliding. So आपके पास इस boy का जो weight है, it is going to act downward. So let me write it as WA. और क्या force इसके ऊपर act करनी चाहिए? Beam को आप remove करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? The normal force. तो beam की force मिलेगी जिसको चले मैं यहाँ ND से represent करता हूँ. इसके अलावा ये एक अदद rope को खींच रहा है. So once you remove that rope, what you are going to get? Tension in that rope. और वो tension जितने angle पे act करेगी वो आपको given है इस smaller triangle से कि ये आपके पास 5 है, then this distance is 12 and this distance is 13. So 5, 12, 13 आपको ये angle given है. Any other thing जो कि आनी चाहिए यहाँ? What about friction? He is on the verge of slipping. So किस डायरेक्शन में स्लिप करेगा रोप को खींचते हुए? सर फ्रिक्शन राइट साइड पे. He is pulling this rope. He is on the verge of slipping towards the left. So accordingly आपके पास friction जो है वो towards the right आनी चाहिए. So let me call it as FD. ये आपके पास right की तरफ आनी चाहिए. I hope that this free body diagram of the boy is clear to all of you. कोई डाउट तो नहीं है किसी का फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से? नो सर. सर सॉरी आपको सर इंटरप्ट करने के लिए. सर वो मोहम्मद अहमद कह रहा है कि मेरा लैपटॉप टैप हो गया है, कोई लाइट नहीं है उसके पास, तो इस वजह से सर वो डिस्कनेक्ट हो गया क्लास. कोई इशू नहीं है. अटेंडेंस हो जाए उस कनेक्ट हो जाएगा बाद में, तो कोई इशू नहीं है. चलें ये बताएं कोई और चीज जो आपके ख्याल में इस फ्री बॉडी डायग्राम पे आनी चाहिए? So the diagram is complete. सर डी पॉइंट पे यही आएगा. यस सर. So आपके पास since this boy is on the verge of sliding, so when he is on the verge of sliding, what should be the value of friction FD? It should be equal to mu n. So mu आपको given है 0.4, ND आपने लिख लिया ये. So आपके पास अब अप्लाई करेंगे equation of motion on this boy. So summation Fx equal to 0. What are the forces which are acting along the x-axis on this boy? FD. One is friction 0.4 ND. The other one is a component of this tension force. So वो कौन सा component है? 12/13. 12/13 और चूंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा है तो आपने उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर लिया. So this would be equal to 0. Let me call it as equation number 1.
Similarly, you are applying summation Fy equal to 0. The forces which are acting along y axis are the weight which is acting downwards. So आपने नेगेटिव साइन डाल दिया. nd आपके पास अपवर्ड एक्ट करेगा और टेंशन का कंपोनेंट होगा 5/13 वाला जो कि आपके पास नेगेटिव एक्ट करेगा. सो ये आपके पास दो इक्वेशंस हैं. इन दो इक्वेशंस में अननोन क्या क्या हैं? nd और टेंशन. टेंशन और नॉर्मल nd और फोर्स. tension. So once you solve it, you are going to get the values of those unknowns. So once you solve it, tension comes out to be 41.6 pound and nd comes out to be 96 pound. ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आपको मिल गई. यहाँ तक क्लियर है? देखो कोई डाउट, कोई क्यूरी आपकी? चलें. सो आपने टेंशन और nd की वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर ली. सो लेट मी रब द सोल्यूशन टिल नाउ ताकि आप जो है वो हम बीम के रिएक्शंस की तरफ जाएं और बीम की फ्री बॉडी डायग्राम की तरफ जाएं. वो दो वैल्यूज टेंशन और nd की आपको जरूरत पड़ेगी, वो मैंने वहां साइड पे लिख दी हैं. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी इरेज्ड फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड. जी, नाउ व्हाट शुड वी डू? क्या करना चाहिए हमें आपके ख्याल में? बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी चाहिए, isn't it? यस सर. चलें, बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए हम इसको वहाँ सपोर्ट रिएक्शन से ही स्टार्ट करते हैं. जिस तरह अभी शुरू में आपसे जिक्र हुआ था, पॉइंट ए के ऊपर रोलर लगा हुआ है. सो वंस वी रिमूव दैट रोलर वी आर गोइंग टू गेट अ सपोर्ट रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ AY. Similarly at point B we have a pin support. So once we remove that pin support we are going to get two support reactions. One is BY, the other one is BX. ये आपके पास सपोर्ट रिएक्शंस BX और BY आ गए. चलिए, और आपके ख्याल में एक एक पॉइंट से आगे मूव करते जाएं. B और A. इसके बाद आपके पास बीम का अपना वेट है जो कि 100 पाउंड्स है. ये किस पॉइंट पे एक्ट करना चाहिए? CG पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Center of gravity. So what should be the center of gravity of this beam if it has a total length of 13 feet? 7.5. सर 6.5. 6.5 ke 7.5? Sorry, 6.5. 6.5. So let me call this point as that 6.5 point. So यहाँ मेरे पास W जो है वो एक्ट करना चाहिए डाउनवर्ड, isn't it? मैं इसको कह देता हूँ पॉइंट G है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस बीम है. ठीक है, यहाँ तक ओके. पॉइंट C जो है वो एक रोप के साथ कनेक्टेड है. सो वंस यू रिमूव दैट रोप फ्रॉम पॉइंट C व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? टेंशन. इट मींस के पॉइंट C के ऊपर यहाँ मैं एक अदद टेंशन बना दूंगा और ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्री. क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, वो एंगल 60 के बने है, दूसरा 90 है, तो ये एंगल आपके पास 30 आ जाएगा. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ओके, अब पॉइंट E की अगर मैं बात करूं जो कि दूसरा एंड है बीम का, इसके ऊपर आपके पास दो अदद अगेन रोप्स आ रही हैं. सो वंस यू आर रिमूविंग दैट रोप यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू ऑफ T एंड यू आर गोइंग टू गेट दिस वैल्यू ऑफ T, isn't it? यस सर. ठीक है. सो आपके पास हम पॉइंट बी से स्टार्ट हुए. बी पे चूंकि पिन जॉइंट लगा था, दो सपोर्ट रिएक्शंस आ गए. फिर पॉइंट ए के ऊपर आए, ए पे रोलर लगा हुआ था, आपके पास एक अदद और सपोर्ट रिएक्शन आ गया. देन वी मूव ऑन टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. वेट एक्ट करेगा 100 पाउंड्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. उसके बाद पॉइंट सी के ऊपर चूंकि रोप लगी हुई थी, आपने रोप रिमूव की, टेंशन आ गई. उसके बाद पॉइंट ई के ऊपर दो तरह रोप लगी हुई थी, एक वर्टिकली डाउनवर्ड और एक ऊपर की तरफ. तो दोनों की रोप्स के अगेंस्ट आपने टेंशन लिख ली. चूंकि ये एक सिंगल रोप है तो द वैल्यू ऑफ टेंशन इन ईच ऑफ दिस पॉइंट्स इज गोइंग टू बी सेम. सो हमने टी से उसको रिप्रेजेंट किया है, T1 T2 या T3 से रिप्रेजेंट नहीं किया है. यहाँ तक क्लियर है आपको? कोई पॉइंट जो अभी तक आपको ना समझ आया हो इस फ्री बॉडी डायग्राम के हवाले से? ओके, नाउ मूविंग टू पॉइंट डी विच इज अ क्रिटिकल पॉइंट. आप अगर आपको ये याद हो, वंस वी वर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मैन, हमने कहा था कि इस बंदे का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करना चाहिए. चलिए उसको मैं उस W से डिफरेंशिएट करने के लिए WD कह देता हूँ. तो ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था. नॉर्मल रिएक्शन आपके पास अपवर्ड एक्ट कर रहा था जिसको मैंने ND कहा था. और टेंशन इन द रोप इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी. फ्रिक्शन आपने किस डायरेक्शन में कहा था? राइट. इसको मैंने FD कहा था. चलें, अब आप इस बंदे का इफेक्ट
पॉइंट डी पे कैसे लेकर आएंगे? आप इस बंदे को रिमूव करेंगे, इजंट इट? बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं ना, तो आपने जिस तरह बाकी पॉइंट्स को आइसोलेट किया, इस बंदे को भी हटा देंगे, ऐसे ही है। सो इस बंदे को हटा के आपको क्या मिलेगा एट पॉइंट नॉर्मल? So what should be the value of that normal? It is going to be ND, isn't it? ऐसे ही है। So आपने वो ND ड्रॉ कर लिया एट पॉइंट D। क्या आप दोबारा वेट भी शो करेंगे WD? नो सर। वजह क्या है? ऑलरेडी ND को अगर आप देखें उसमें वेट का इफेक्ट आ चुका है। अगर आप ND की कैलकुलेशन देखें, ND जब आप कैलकुलेट करे थे तो उसमें ऑलरेडी आपने वेट और जो टेंशन इस डायरेक्शन में आ रही थी उसको शामिल किया हुआ है। तो ये ना हो कि आप गलती से ND के साथ साथ WD भी शो कर दें। यहाँ नहीं, WD की वजह से ही तो ये ND मिल रहा है इसको यहाँ। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया हर एक को? यस यस सर। चलें, और कुछ आपके ख्याल में हम मिस कर गए हैं यहाँ? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पॉइंट डी पे आनी चाहिए। उसका डायरेक्शन क्या होगा? थोड़ा सा और से सोच के बताएं। लेफ्ट साइड। चले, मैं आपके ख्याल से लेफ्ट पे बना लेता हूँ इसको, पर रीजन तो नहीं, लेफ्ट की तरफ आपने क्यों बनवाया है? एनी स्पेसिफिक रीजन? सर राइट पे नहीं आएगा फ्रिक्शन, क्योंकि स्लाइड तो उधर वो लेफ्ट पे करेगा। नहीं, मैं इसीलिए जिसने लेफ्ट बताया है उससे रीजन ही मांग रहा हूँ ना। तुक्का छोड़ा है तो और बात है, अदरवाइज कोई लॉजिक आप बताएं इस लेफ्ट की। जी, एनी रीजन विच यू थिंक कि ये लेफ्ट की तरफ आपने बनवाया है? ऑल्दो करेक्ट है, वो आएगा लेफ्ट की तरफ ही। कन्वेंशन ली है कि जितना सर हम अवे फ्रॉम द पॉइंट ड्रॉ करते हैं हर चीज, सर हम आइसोलेट करते हैं किसी चीज को। ये तो गलत कन्वेंशन है। आपने जवाब सही दिया, लॉजिक गलत बता रहे हैं। एनी अदर लॉजिक कोई और स्टूडेंट बताना चाहिए? चलिए, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। बंदा जब मौजूद था तो उस वक्त सर हमारे पास फ्रिक्शन राइट साइड पे थी, उसको रिमूव किया तो यानी कि उसकी रिएक्शन में इसलिए आई। नहीं, देखिए, आप फ्रिक्शन कैसे जज करते हैं, किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करती है? अगर आप थोड़ा सा सोचें, जो हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन बिल्कुल स्टार्ट में की थी, इन व्हाट डायरेक्शन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स? सर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सर रिलेटिव मोशन ऑफ द बॉडी। रिलेटिव मोशन, ठीक है। रिलेटिव मोशन को देखें। आप थोड़ा सा गौर करें, जब आप बंदे की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे थे तो आपके पास बीम को अगर मैं स्टेशनरी तस्वुर करता तो बंदा जो है वो इस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा था, ऐसे ही है। यस सर। तो उस सूरत में आपने बंदे के लिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये बता दी थी। यहां तक की लॉजिक सही है आपकी? क्योंकि बीम स्टेशनरी आपने तस्वुर किया था, बंदा स्लाइड कर रहा था टुवर्ड्स द लेफ्ट, सो आपने कहा फ्रिक्शन टुवर्ड्स द राइट होगी व्हेन यू आर ड्राइंग द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस मैन। यही लॉजिक थी ना? काइंडली जवाब दे दे कोई स्टूडेंट। चलिए, अब आप जरा बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। सो बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आप बंदे और बीम का जो रिलेटिव मोशन है वो देखें। उस रिलेटिव मोशन को देखने के लिए अगर मैं बंदे को स्टेशनरी कर दूं तो बीम किस डायरेक्शन में बंदे के हवाले से मूव करती हुई आपको महसूस होगी? सर बीम फिर लेफ्ट साइड। या देखो, अगर तो बंदा बीम में स्टेशनरी करूं, बंदा राइट साइड पे मूव कर रहा है, बंदा लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, ऐसे ही है। अगर मैं बंदा स्टेशनरी कर दूं तो रिलेटिव मोशन बनाने के लिए बीम किस डायरेक्शन में जानी चाहिए? टुवर्ड्स द राइट नहीं जानी चाहिए? रिलेटिव मोशन देख रहा हूं ना मैं। तो बीम स्टेशनरी है, बंदा लेफ्ट की तरफ जा रहा है, बंदे को स्टेशनरी करूं तो बीम को राइट की तरफ नहीं जाना चाहिए?
यस सर। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन अगर मैं देखूं तो उस हवाले से मेरी फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट आना चाहिए, यानी टुवर्ड्स द लेफ्ट आना चाहिए। वैसे भी अगर मैं सिस्टम को देखूं जो कि बंदे और बीम वाला सिस्टम है, फ्रिक्शन फोर्स इज बेसिकली इंटरनल टू द सिस्टम, ऐसे ही है, एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। अगर मैं सिस्टम कंसीडर करूं बंदे और बीम का एक कंबाइंड सिस्टम, तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली इंटरनल टू द सिस्टम। और हमने इंटरनल फोर्सेस के हवाले से क्या पढ़ा था, किस तरह ये अकर करती हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट कोलिनियर पेयर्स के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करती इंटरनल फोर्सेस। यस सर। लिहाजा मेरे पास जब मैं बीम की फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन मेरे पास लेफ्ट की तरफ आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलें, अब जब आपने फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट कर ली है, अब मुझे बताएं कि आपके पास ये जो बीम है जो कि रिजिड बॉडी है, कितनी इक्वेशंस होती हैं रिजिड बॉडी की, इक्विलिब्रियम की? सर 3 इक्वेशन, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई एंड मोमेंट। तो कहाँ से आपको ये शुरू करना चाहिए, अपनी इक्वेशन कौन सी पहले लगानी चाहिए कि आपको रिएक्शन ए एक्स, ए वाई और बी एक्स में से कोई एक मिल जाए? सर मोमेंट ओ सर अबाउट एक्स पहले लेना है। अगर मैं मोमेंट अबाउट डी लगा लें। अगर मैं पहले मोमेंट अबाउट बी लगा लूं तो कोई नुकसान तो नहीं है? नो सर। बी एक्स बी वाई दोनों 0 हो जाएंगे। ए वाई का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पॉइंट बी? 4 क्लॉकवाइज मोमेंट है, काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज। नेगेटिव साइन आ गया। W का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है पॉइंट बी से? 6.5 6.5। क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज। पॉजिटिव आ गया। जो पहला पॉइंट सी पे टी है, इसका कौन सा कंपोनेंट मोमेंट बनाएगा, कॉस के साइन? सर ये काइंडली बता दें 6.5 किस तरह है? यार यस सर, सेम क्वेश्चन। बीम की लेंथ कितनी है? यस सर। ओके सर ठीक। 13 फुट लेंथ है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका 6.5 पे एक्ट करेगा ना। ओके सर। ओके सर। चलिए, टी का कौन सा कंपोनेंट मोमेंट बनाएगा पॉइंट सी पे, कॉस वाला या साइन वाला? सर साइन वाला, कॉस वाला से पास कर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर 7। और क्लॉकवाइज है काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज सर। काउंटर क्लॉकवाइज है। पॉइंट ई पे जो टी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? सर उसका 13। 13। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? सर काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, ये जो पॉइंट ई के ऊपर की तरफ टी है, इसका एक्स कंपोनेंट मोमेंट बनाएगा वाई कंपोनेंट? सर वाई कंपोनेंट। तो वो कंपोनेंट 5 और 13 होगा। यस सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका फ्रॉम पॉइंट बी? सर 13। क्लॉकवाइज 13। काउंटर क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास मोमेंट वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसमें अननोन क्या है, टी की वैल्यू तो आपको मिली भी थी जब आपने बंदे की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई थी। तो अननोन हियर इज ए वाई। वंस यू सॉल्व इट, you are going to get the value of AY to be equal to 474.1 pounds. Is it clear? Yes sir. Okay, next step में आपको क्या करना चाहिए, summation fx, summation fy. So once you apply summation fx, you are going to get the value of bx. Once you apply summation fy, you are going to get the value of by. Is it clear? Okay, so moving to the final problem of today's lecture. It is problem 8-19. You have two blocks A and B. Weight of these blocks is given to you as 10 pounds and 6 pounds respectively. They are resting on the incline for which the coefficient of static friction is 0.15 for block A and 0.25 for block B. You need to determine the angle theta for which both blocks are on the verge of sliding. So when both blocks are on the verge of sliding, is it case 1, 2 or 3? सर केस 3 2 इंपेंडिंग मोशन था। इंपेंडिंग मोशन तो है, पर ऑल पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है या सम पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है? हम सर बोथ ब्लॉक्स है तो फिर ऑल नहीं होगा सर? जी, बोथ ब्लॉक्स है तो वो ऑल होगा, विच इज केस नंबर 2. इट मींस कि आप फ्रिक्शन की वैल्यू ए पे भी एफ इक्वल टू म्यू एन लगाएंगे और बी पे भी एफ इक्वल टू म्यू एन लगाएंगे, बिकॉज इट इज गिवन टू यू. इसमें ये नहीं कहा कि थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि सिस्टम में मोशन शुरू हो जाए. सिस्टम में मोशन का अगर कहता तो फिर आइदर ब्लॉक ए और ब्लॉक बी और साइमल्टेनियस, फिर वो केस 3 बन जाता. आपसे ये कहा गया कि थीटा की वो वैल्यू जिसमें दोनों ब्लॉक्स मोशन शुरू कर दें, तो दोनों ब्लॉक्स, इट मींस कि आपके पास केस 2 आएगा. आई होप कि ये वर्डिंग से हर एक को क्लियर है कि हाउ इज इट केस 2.
Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो तो फ्रिक्शनल इक्वेशंस हो गई हैं, एफ ए इक्वल टू म्यू एस या म्यू एन ए, एफ बी इक्वल टू म्यू बी एन बी। और चलिए इक्वेशंस की बात बाद में करते हैं, पहले जरा फ्री बॉडी डायग्राम पे आ जाएं। आप दोनों पार्टिकल्स की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो दिस शुड बी द वैल्यू डब्ल्यू ए एन ए थीटा एफ स्प्रिंग, और ए के ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आनी चाहिए? सर अपवर्ड। अपवर्ड आनी चाहिए, क्योंकि दिस ब्लॉक हैज द टेंडेंसी ऑफ स्लाइडिंग डाउनवर्ड, तो आपके पास फ्रिक्शन अपवर्ड आ गई। आई होप कि दिस फ्री बॉडी डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, डब्ल्यू sir. सी आपके पास आ गया, एन बी आपके पास आ गया, ये एंगल थीटा आ गया, ये स्प्रिंग फोर्स आ गई, और बी के ऊपर फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सर वो भी अपवर्ड। वो भी अपवर्ड, तो वो हमने ड्रॉ कर ली। सो ओवरऑल जब आप दोनों पार्टिकल्स के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखेंगे, तो पार्टिकल ए के लिए आपको दो इक्वेशन, पार्टिकल बी के लिए आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी। सो व्हेन वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, वी आर गोइंग टू गेट दीस टू इक्वेशंस फॉर पार्टिकल ए। सिमिलरली वंस वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बी, वी आर गोइंग टू गेट दीस टू इक्वेशंस फॉर पार्टिकल बी। सो ओवरऑल हमारे पास ये चार इक्वेशंस हो गई हैं। अननोन्स कितने हैं इन इक्वेशन में, जरा गौर से देखेंगे। वन अननोन इज एफ ए, सेकेंड वन इज एन ए, थर्ड वन इज थीटा एफ बी एन बी। तो ये पांच अननोन्स तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इसके अलावा छठा स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी, इजंट इट? यस सर। Yes, sir. और कोई चीज जो आपके ख्याल में अननोन है? तो 6 अननोन, इक्वेशन कितनी है आपके पास? सर चार ही हैं और दो टू मैक्सिमम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। ठीक है। तो वंस यू सॉल्व दीज इक्वेशंस, यू आर गोइंग टू गेट, अब वो सोल्यूशन यहाँ हुआ हुआ है, मैथमेटिक्स यहाँ हुई भी है, आपकी अपनी मर्जी है, आप मैनुअली करें, आप किसी तरह कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें। बहरहाल द वैल्यू ऑफ थीटा वुड कम्स आउट टू बी 10.62 डिग्रीज। आपके पास थीटा की वैल्यू 10.62 डिग्रीज आ जाएगी। इस एंगल पे ये दोनों ब्लॉक्स जो हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। इससे थोड़ा सा भी एंगल आप बढ़ाएंगे तो ये दोनों में मोशन जो है वो शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्प्रिंग फोर्स कितनी होती है, क्या फॉर्मूला है स्प्रिंग फोर्स का? F इक्वल टू के, के की वैल्यू आपको गिवन है। अगर आप चाहें थीटा एन ए एन बी फाइंड करने के बाद इनमें से किसी इक्वेशन के साथ अगर x फाइंड करना चाहें तो x भी आपको मिल जाएगा, लेकिन चूंकि कहा नहीं गया तो जरूरत नहीं है इसको डिटरमिन करने की। चलिए, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर।